Hello to all the lovely people over there. Previously, we had completed up to question 4 of the very same exercise 3.1. Till now, many of you have written the exercise up to question number 4, and many of you have even sent it to me. That's really nice. But the students who did not write till now, okay, I'm again telling you, watch that video. It's so very important. Okay, watch that video, understand it very well, and write your homework and send it to me. It is for them. It is for those who still have not done anything in our new chapter. Chapter number 3 it is the understanding quadrilateral. It's a very important chapter in our geometry. Okay. Now, question number 5 is, what is regular polygon? Till now we had learned the term polygon. Okay, and what is polygon? Based upon the definition, polygon is a closed figure that is made of line segment. जो line segment से बनी हुई हो, ऐसी कोई भी closed figure हो. Okay, state the name. Okay, we will see this question later. First of all, we will try to understand what is regular polygon. We are very familiar with the word polygon, but I think regular polygon is a new for us. So first of all, suppose I tell you to draw any polygon. You can draw a polygon with 3 line with 3 line segment. You can draw polygon also with 4 line segment. This is also polygon. You can draw a polygon with 5 line segment. This is also polygon. But all these are polygon. You can give the name also like triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, and many more. But here we have been asked about regular polygon. Now what is regular polygon? Suppose कि मैं आपको कहूँ कि ये जो ट्राइंगल आपने ड्रॉ किया है वो रेगुलर होना चाहिए. ये पॉलीगन तो है ही, बट इट शुड बी रेगुलर. तो जब मैं रेगुलर पॉलीगन वर्ड यूज करता हूं, इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड अभी तो इक्वल नहीं है. दिस इज स्मॉलर साइज कंपेयर टू दिस एंड दिस. ओके, सो जब अब मैं आपको रेगुलर पॉलीगन कहूं तो आपको सारे के सारे जितने भी लाइन सेगमेंट है सभी की लेंथ जो है वो सेम रहनी चाहिए. सपोज कि इट कुड बी लाइक दिस. सपोज one line, the length of one side is 5 centimeter, then it is also should be 5 centimeter, and this should be also 5 centimeter. It means कि regular polygon का मतलब है the length of its all line segment must be equal always. Okay, ये साइड इस साइड की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ उसकी होनी चाहिए और उसकी लेंथ इतनी लेंथ उसकी होनी चाहिए. ओके, अगर मैं यहां पर जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मींस कि उसके 4 लाइन सेगमेंट होने चाहिए. ओके, तो अगर मैं इसको रेगुलर बनाने के ट्राई करूं, इट मींस कि इसकी भी चारों साइड कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी ही चाहिए. ओके, this and this, all this line segment, the length of all this line segment should be equal. अगर सपोज कि 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 ही सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये भी 4 ही सेंटीमीटर का होना चाहिए और ये भी 4 ही सेंटीमीटर का होना चाहिए. Then I can call it a regular polygon. This is also regular polygon. This is a triangle and this is a quadrilateral, but both are regular. सपोज में अगर ये जो पेंटागन है जो 1 2 3 4 5, एक्चुअली दिस इज अ हेक्सागन. अगर मैं इसको पेंटागन बना दूं 1 2 3 4 एंड नाउ दिस इज अ पेंटागन बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 5 लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये 5 लाइन से बना हुआ है. ओके, अगर लेकिन अभी ये रेगुलर नहीं है. क्यों रेगुलर नहीं है? क्योंकि उसकी कोई एक साइड छोटी है, कोई एक साइड बड़ी है. तो सपोज आई वांट टू मेक इट रेगुलर पॉलीगॉन, that time its all line should be of equal side.
ओके, सपोज कि ये अगर 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3, ये भी 3 और दिस शुड बी ऑल्सो ऑफ 3 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। ओके, तो दिस इज व्हाट व्हेन द वर्ड इज यूज रेगुलर। ओके, कि आपको चार सबकी जो लेंथ है लाइन सेगमेंट की वो आपको इक्वल रखनी है। नाउ वन मोर पॉइंट, जब भी आप किसी भी पॉलीगॉन की, किसी भी फिगर की अगर लाइन आप सेम रखोगे, अगर आप लेंथ उसकी सेम रखोगे तो ऑटोमेटिकली उसके सारे जो एंगल है वो भी इक्वल ही हो जाएंगे। ओके, ये भी 60 का बन जाएगा, ये भी 60 का बन जाएगा, ये भी 60 का बन जाएगा। क्यों 60 का बन जाएगा? बिकॉज एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम यानी उसके तीनों एंगल का सम, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180। तो 180 विल बी डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो 180 को आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 60, 60 एंड 60। दैट मीन्स जैसे आपने ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल कर दी, ऑटोमेटिकली उसके सारे जो एंगल है वो भी इक्वल बन ही जाएंगे। यहां पर भी जैसे आपने चारों लाइन इक्वल की है, ऑटोमेटिकली उसके चारों के चारों एंगल ये और ये और ये भी इक्वल हो ही जाएंगे। ओके, नाउ अगर इट इज नॉट नेसेसरी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, बट इफ आई आस्क यू कि चारों एंगल का मेजरमेंट कितना कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है then the angle sum of quadrilateral is always 360. You have already learned in the previous lecture, if you might have remembered this question number 4 where we have drawn one table जिसमें हमने फिगर, एंगल सम और उसके साइड और सब लिखा हुआ था। उसमें आपने क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम में हमारा आंसर था 360। तो अगर मैं 360 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 90, 90, 90 एंड 90। इट मींस कि जब भी हमारी फिगर रेगुलर होती है तब उसकी साइड तो इक्वल होती ही है, साथ में उसके एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। उसी तरह अगर ये पेंटागन है तो उसके अगर पांचों साइड इक्वल है तो ऑटोमेटिकली उसके सारे एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो रेगुलर पॉलीगॉन किससे कहेंगे कि एक तो उसकी साइड इक्वल होनी चाहिए, दूसरा उसके एंगल इक्वल होने चाहिए। अभी मैं आपको अगर ये कहूं कि इसके जा रहे जो एंगल है उसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, व्हाई इंटीरियर एंगल? बिकॉज ऑल दिस एंगल आर इनसाइड टू दिस फिगर, क्योंकि ये जो एंगल है वो फिगर के अंदर की साइड है। ओके, अभी ये जो एंगल बन जाएगा इतना, ये एंगल है एक्सटीरियर एंगल। व्हाई? बिकॉज इट इज आउटसाइड द फिगर। सिमिलरली ये भी एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा और ये भी एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। ओके, एंड सरप्राइजिंगली ये एक्सटीरियर एंगल भी तीनों के तीनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। यहां पर भी एक्सटीरियर एंगल होगा, ये वाला, ये दिस एंड दिस। यहां पर भी दिस 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 एंड दिस। ओके, सो कहने का मतलब है कि when it is regular polygon, its three condition will be resolved, three condition will be compromised, and which are those three condition? First is it's all the length of all its line segment, its all line will be equal. This is the first. Second is its all interior angle will be equal, and third one is its all exterior angle will be equal. अगर ये तीनों कंडीशन किसी भी पॉलीगॉन में अप्लाई हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तब ही वो केवल वो पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा, अदरवाइज नॉट। ओके, तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो I can write my answer as regular polygon is one
whose length of all line segments is equal. ओके, मैंने क्या लिखा? रेगुलर पॉलीगॉन इज वन, मतलब रेगुलर पॉलीगॉन वो है whose मीन्स जिसके लेंथ ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट की सभी लेंथ कैसी है? इक्वल है. एक ये कंडीशन होगी. सेकंड वाज थी कि इंटीरियर एंगल भी इक्वल है. सेकंड है कि इंटीरियर एंगल is also equal. मैं यहां पे ऐसा भी लिख सकता हूं, is interior angle should be also equal and इंटीरियर एंगल भी इक्वल होने चाहिए, शुड बी इक्वल होने चाहिए, एंड एक्सटीरियर एंगल शुड बी ऑल्सो इक्वल, एंड exterior angle should be equal. Okay, अब यहां पर ऐसा भी लिख सकते हो, as well as exterior angle should be also equal. So these three conditions should be compromised, then only वो जो पॉलीगन है, वो जो फिगर है, वो रेगुलर कहलाएगी, अदरवाइज नॉट. ओके, बट अगर हम ध्यान से थोड़ा देखें तो अगर इसकी पहली कंडीशन भी अगर कॉम्प्रोमाइज होगी, पहली कंडीशन भी अप्लाई होगी, तो सेकंड एंड थर्ड तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी मोस्टली. ओके, नाउ हमें ये पूछा गया है, सेकंड सेंटेंस वाज कि स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, 4 साइड एंड 6 साइड. अगर 3 साइड वाला कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो तो उसको क्या कहेंगे? हम इस ट्राइंगल को क्या कहेंगे? ये जो ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड इक्वल है. इफ यू रिमेंबर व्हेन यू आर इन 6th or 7th क्लास, आई डोंट नो इन विच ग्रेड यू हैव लर्न दैट, बट वी हैव लर्न 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड अपॉन इट्स लेंथ ऑफ साइड. ओके, अगर तीनों साइड इक्वल है तो हम उसको कहते थे इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, तो तीनों साइड इक्वल है, इसको हम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन ट्राइंगल, जिसमें इक्विलेटरल में जिनों के तीनों साइड इक्वल होते थे, तो 3 साइड को क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल. अगर 4 साइड इक्वल हो, चारों की चारों साइड इक्वल है, तो उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर. अगर 6 साइड्स इक्वल हो तो उसको क्या कहेंगे हम? हमारे पास यहां तक कि नेम थे इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर. अगर 6 साइड्स हैं तो उसको कहते हैं हेक्सागन. बट कैसा? रेगुलर हेक्सागन. ओके, so this was the question that we have learned today. So this is the most important thing that we need to remember कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है. रेगुलर पॉलीगॉन 5 सेगमेंट, 6 लाइन सेगमेंट, 7 लाइन सेगमेंट किसी से भी बना हुआ हो सकता है, लेकिन अगर उसकी सारे की सारी लाइन सेगमेंट की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, इंटीरियर एंगल इक्वल होने चाहिए और एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होनी चाहिए, तभी उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे. अगर 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसको हम कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगर 4 साइड वाला है तो उसको हम कहेंगे स्क्वायर, और 6 साइड वाला है उसको हम कहेंगे रेगुलर हेक्सागन. So I hope you understood the question that wanted to explain us. Okay. In next lecture we are going to see question number 6. But it's a very important to understand this. You don't need to write. You don't need to draw this. I have just drawn this to explain you in some better way. So you just need to write question number 5, and this is the answer in a very clean and neat way. And don't forget to send it to me. Thank you.